So quickly ask if anyone having any doubts related to any particular question related to previous topics. Especially we are discussing about UN, United Nations. Okay. And first most important thing is the logo of the United Nations, which we have not discussed yet. So there are some significance of the logo of the United Nations that Sir, we will Asia. discuss. What? Sir, जो ये पीछे बना हुआ सर, which continent is this? It's all over world map is this. No sir, नहीं है ये. Yes. ये जो है ना, ये view of 3D view, about that only we will learn today. इसके बारे में ही हम लोग आज पढ़ेंगे. And this is the activity which we have in the creativity corner of page number 123. Yes. So everyone come and take out page number 123 of the creativity corner of the chapter. So herein first it is asking to draw the logo of the United Nations, right? After then you have to write about the significance of this logo, what this logo represent, and what is the things which we have in this logo. क्या क्या इसमें है और इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप लोगों को बताना है. तो सबसे पहले आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, समझ गए सभी? इसको ड्रॉ कर लोगे सभी? Okay, in this first most important thing what you have to draw is the world map. These are the maps shows. ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये maps है, ठीक है? तो ये पहले ड्रॉ करना है. उसके बाद इसके अलावा हम लोग का यहाँ पे कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स है. अब समझते हैं व्हाट द कंसेंट्रिक सर्कल्स इज. कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोला जाता है? हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े हैं, बट व्हाट द कंसेंट्रिक सर्कल मीन? कंसेंट्रिक मीन्स ऑफ ए सिंगल सेंटर. यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी सर्कल है इसका एक ही सेंटर है, ठीक है? तो इस तरह का सर्कल जिसका सेंटर जो है वो कॉमन हो, एक ही सेंटर हो, that type of circle are called concentric circle. ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग का कितना सर्कल है बताइए आप लोग? How many circles are there? 1, 2, 3, 4, 5 circle. Exactly. So first most important thing you have to keep in mind in the world map, first is the world is shown here, okay, and after then here we have 5 circle. And what about these two things? Can anyone tell me ये दो चीज जो है ये क्या है? Exactly. ये जो है this is the leaf of olive tree. Olive tree मतलब हिंदी में इसको जैतून या जलपाई बोला जाता है. उसका पेड़ होता है, ठीक है? उसका एक फ्रूट्स होता है, जैसे उसका काफी ऑयल भी होता है, ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है? और ये ट्री जो होता है दिस इज कंसिडर एज द पीस, मतलब ये जो है शांति का प्रतीक है, जिसके लिए यहाँ पे दो साइड में ये यूज किया जाता है, ठीक है? Someone is saying something? No sir. Okay, so this drawing first you have to draw in the space, then you have to write about this. Okay, so significance of the logo of United Nations, because here very less space is there, so as much as you can write, you will write here, otherwise you can write in your copy also. Even for drawing also there is very less space given. तो कोई अगर कॉपी में बनाना चाहते हो they can make in copy also. Okay. Okay sir. So what are the significance? First let us see. It consists of a map of the world. So सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ये जो है ये मैप है, वर्ल्ड का मैप है, ठीक है? After then surrounded two
olive branches of a field of smoke blue with all water areas in white. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्चुअली कलर हम लोग बैकग्राउंड जो है वो दूसरा कलर यूज किए हैं, नहीं तो ये जो है ये बैकग्राउंड व्हाइट कलर होता है, ठीक है। तो एक्चुअल फ्लैग जो होगा दैट आई विल शो यू ऑल, वहां पे ये जो होता है वाटर मार्क जो होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे जो देखो जो कलर होता है स्पेशली, ठीक है, सो वो होता है फील्ड ऑफ स्मोक ब्लू, मतलब जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर होता है और जो एरिया है वो व्हाइट होता है। तो ये एक्चुअली दिस ऑल एरिया विल बी व्हाइट ओनली, ठीक है। आई विल शो यू ऑल द अनदर लोगो ऑफ दिस, सो डोंट यूज कलर। Sir, I have doubt. यस सर जो तब हम लोग सर कैसे स्केच बनाएंगे इसका सर? तो जो उसका बैकग्राउंड है तो वो ब्लू है और जो उसका फ्रंट है पोर्शन वो तो व्हाइट है, तब सर तब कैसे वेट, बनाएंगे? लेट मी शो यू ऑल, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है, वेट। सी इट्स लाइक दिस, इस तरह का एक फ्लैग होता है, ठीक है। ये फ्लैग जो होता है दिस इज टोटली ब्लू कलर एंड दिस इज लाइक व्हाइट, इस तरह से व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। और भी अच्छे से इसको दिखाने का हम कोशिश करते हैं। देखो इस तरह से होता है, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे व्हाइट कलर होता है और इसका बैकग्राउंड जो होता है दैट इज ऑफ ब्लू, ओके। सर हम लोग कैसे बनाएंगे? व्हाइट है सर ऐसे इसका ही जो ऐसे ही बनाएंगे, लाइक दिस। सर कैसे बनाएंगे सर? व्हाइट कैसे What? निकाल पाएंगे सर? जो सर वो तो फ्लैग ब्लू है तो सर, जो उसका कलर है सर वो व्हाइट कैसे बनाएंगे सर? व्हाइट कलर यूज कर सकते हो या तो व्हाइट बैकग्राउंड छोड़ दोगे, ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, कोई कलर ही यूज नहीं करोगे, इस तरह से बनाओगे। ये कितना अच्छा लग रहा है, अंडरस्टूड। सर पिक बना दूंगा। सर हाँ आ गया स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, सो दीज आर द ट्रीज ऑफ ओलिव ट्रीज, है ना। और इसका ब्रांचेस जो होता है इस तरह से होता है और फ्रूट्स जो है इस तरह से होता है, देखो, काला ठीक काला है। काला है या कच्चा में जब रहता है तो ग्रीन भी होता है। पर्पल सर, डार्क पर्पल। बता रहे सर तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स और देयर, इस तरह से फ्रूट्स होता है, ठीक है। स्पेशली उसका ब्रांचेस जो है वो यूज किया गया है, इस तरह का ब्रांचेस होता है। ये सर्कल बनाता है, बहुत सुंदर लगता है। So I hope now you understood about the logo of the UNs and the specifications of the logo of the United Nations. मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पे ये व्हाइट कलर का होता है पूरा लोगो। तो इसको जब भी बनाओगे कोई भी कलर यूज नहीं करोगे, इसका बैकग्राउंड में आप ब्लू कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड का जो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैप बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे 5 और यहाँ पे ऑलिव का जो लीफ है वो बना देंगे, ठीक है। उसका स्पेसिफिकेशन में हम लोग वही लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय 2 ऑलिव लीफ, okay, and the color are blue and white, okay. So blue, smoke blue we use for the background and the water area we use as like white color, okay. And olive branches are the symbol of peace, and there are 5 concentric circles used, and for the color we use sky for blue for sky and white for clouds, okay, which is also the symbol of peace. Yes, sir, जो सर smoke blue, what is the meaning of smoke blue? what? Meaning of smoke blue? Smoke blue, स्मोक ब्लू मतलब होता है डीप या तो इस तरह से ब्लू कलर जो होता है ना, लाइक दिस, थोड़ा सा मतलब डीप ब्लू नहीं होगा, थोड़ा सा स्मोक मिक्स होगा, ठीक है।
कौन सा लाइट ब्लू, ब्लू दो कलर का होता है, एक डीप ब्लू होगा और एक लाइट ब्लू होता है, सो इट्स नॉट लाइक डीप ब्लू, ठीक है। middle? यस, Sir, you can give homework this. Sir. दैट आई विल टेल यू ऑल, Okay. let's see. So except this, another activities which we have in the same page, what I can make a difference, ये बहुत ही important activities है जो आपको खुद करने हैं, but still हमने कुछ कुछ pointers add किया है, तो don't just copy all the points, you just try to find out some more points or some different points and add here. यहाँ पे क्या है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द प्रॉपर्टी, ओके। तो दरिद्रता होता है, प्रविता मतलब गरीबी जिसको बोलते हैं नॉर्मली, तो इसको हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इस पे आपका रोल क्या रहेगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन. So this is totally the basis of your thinking. You need to think about it and you have to write about it. So if I want to add some points, we can discuss about that. कि by learning the basic causes of poverty, we can reduce the poverty. जब तक हम लोग को poverty का जो reason क्या है वही नहीं पता चलेगा, तब तक हम लोग उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को पॉवर्टी का रीजन जानना पड़ेगा कि क्या क्यों होता है पॉवर्टी। अगर हम लोग जानकार रहेंगे तो उसको रोक सकते हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने दिया है जो कि क्रिएटिंग जॉब्स। नॉर्मली गरीबी तब पैदा होता है या तब बढ़ता है जब आदमी को जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, ठीक है। अभी आप अगर कोविड का सिचुएशन देखोगे तो काफी लोग, काफी प्राइवेट सेक्टर्स में वर्कर्स है या एम्प्लॉय है जिनको जॉब जो है, जॉब से मतलब काम बंद होने के कारण उनको बैठना पड़ा है या जॉबलेस हो चुके हैं। तो जॉबलेस जब हो गए हैं तो डेफिनेटली गरीबी बढ़ेगा, ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा, गरीबी बढ़ेगा। तो जब जॉब क्रिएट होगा, जब जितना ज्यादा जॉब मिलेगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो हम लोग का प्रॉपर्टी रिड्यूस होगा, ठीक है। समझ में आ गया? नो वन अंडरस्टूड? किसी को नहीं समझ में आया? टेल can you all hear or able to hear or not? You can tell in audio, no need to give the message. I am using headphone. Yes, sir, understood. Okay. तो सबसे पहला चीज क्या है, हम लोग को जानकार बनना है। उसके बाद क्या है, हम लोग को जॉब क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम जॉब्स मिल सके, मैक्सिमम काम मिल सके। जॉब मतलब काम, वर्क भी लिख सकते हो वहां पे। बाय रेजिंग द मैक्सिमम वेज, ठीक है। वेज का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? वेज का मतलब होता है तनख्वाह या वेतन जिसको बोलते हैं, मतलब जो काम करते हैं उसके बदले पे जो पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड द वेज, ओके। सो अगर मान लीजिए कि किसी को जितना ज्यादा वेतन मिलेगा, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा, उतना कम चांसेस रहेगा दरिद्रता या गरीबी होने का, ठीक है। तो जब पैसा ज्यादा मिलेगा तो उसका गरीबी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग और बाय रेजिंग द मैक्सिमम मिनिमम वेज, मतलब अभी नॉर्मली क्या होता है कि कम से कम पैसा में काम कराया जाता है जिसको, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद बाय एडॉप्टिंग चाइल्डलेस वर्कर, मतलब चाइल्डलेस वर्कर मतलब यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली वो एडॉप्टिंग, यहाँ पे चाइल्ड वर्कर्स होगा, चाइल्डलेस को हटा देना, क्योंकि एडॉप्टिंग का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अगर जो चाइल्ड वर्कर्स होते हैं वो किस लिए काम करते हैं, नॉर्मली घर का प्रेशर के कारण काम करते हैं। उनको अगर एडॉप्ट कर लिया जाए, एडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसको अगर कहीं अच्छा खाना, रहना, पढ़ाई, उसका सारा व्यवस्था हम लोग करें तो वो काम नहीं करेंगे, राइट। तो उस तरह से अडॉप्ट करना मतलब उनका पर्टिकुलर फैमिली में उस तरह से माहौल रहता है तभी वो काम करने जाते हैं। तो उनको अगर उस फैमिली से अलग हम लोग कहीं इस तरह से रख सके जहां पे उनको उस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, तो वो पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके आगे जॉब क्रिएट करेंगे, जॉब करेंगे और इस तरह से जो गरीबी है वो दूर हो जाएगा, ठीक है।
चाइल्ड लेबर को हम लोग को रिड्यूस करना है, रिड्यूस क्या, हटा ही देना है, बंद करना है, और उसको अडॉप्ट करके उसको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करके उसको जॉब प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय इंक्रीजिंग हाई क्वालिटी चाइल्ड केयर एंड अर्ली एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि हाई क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी का, चाइल्ड केयर मतलब क्या होता है, बच्चों का देखभाल अच्छे से करना है, ठीक है। और जो उसका बचपन का एजुकेशन है, स्पेशली जब बचपन का एजुकेशन अच्छा होगा तो आगे का एजुकेशन भी अच्छा होगा। अर्ली एजुकेशन खराब होने के चलते आगे का एजुकेशन भी जो है अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा क्लोजिंग द जेंडर वेज गैप। जेंडर वेज गैप का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ सेक्टर है जहां पे नॉर्मली ये देखा जाता है कि नहीं, ये फीमेल वर्कर्स है, ये नहीं, ये काम नहीं कर सकते हैं, ये मेल वर्कर्स है, ये इसका जरूरत है यहाँ पे। तो इस तरह से जो जेंडर बेसिस का जेंडर गैप है उसको बंद करके हम लोग जो है पॉवर्टी रोक सकते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जेंडर गैप्स के कारण जो फीमेल वर्कर्स होते हैं वो उनको काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग और एक चीज भी ऐड कर सकते हैं कि भाई प्रोमोटिंग द व्हाट कॉल गर्ल्स एजुकेशंस, और इस तरह से फीमेल एजुकेशंस को प्रमोट करके या इंक्रीज करके भी हम लोग प्रॉपर्टी रोक सकते हैं। क्योंकि फीमेल जो होते हैं वो घर में काफी काम करते हैं, ठीक है, तो वो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द अदर वर्क आल्सो, बट ड्यू टू सम ऑफ द थिंग्स, सम सोशल थिंग्स, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, सो उसको रिड्यूस करना है, तो जेंडर गैप को रिड्यूस करना है या हटा देना है, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग पेड लीव्स एंड पेड सिक डेज। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट द पेड लीव्स एंड पेड सिक डेज इज। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारा सेक्टर्स ऐसा है, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर्स, जहां पे आप अगर छुट्टी लेते हो तो उस दिन का पैसा जो है वो काट कर लिया जाता है, ठीक है। या तो आप अगर बोल के भी छुट्टी लेते हो तो उस पर्टिकुलर डेज का जो पैसा होता है वो नहीं दिया जाता है आपको, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग खत्म कर दे, और वो जो लीव लेते हैं, कौन है, पुट ऑन म्यूट एवरीवन प्लीज, सभी म्यूट में डालने अपना। कोई लाउड स्पीकर ऑन करके बैठे हुए हैं। यस, सो सो लीव जब कभी भी छोटा या कम दिन के लिए, 2-4 दिन, 1-2 दिन के लिए लीव जो लेते हैं, तो उस पे भी हम लोग को पेड लीव देना चाहिए। मतलब अगर छुट्टी बाई चांस कोई करते भी हैं तो उसको पैसा मिल जाना चाहिए छुट्टी का भी, ठीक है। नॉर्मली वर्कर्स जो होते हैं, जो डेली काम करते हैं, वो उनका क्या रूल्स रहता है कि वो जितना दिन काम करते हैं उतना दिन पैसा मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्री एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज, जो स्पेशली वीकर सेक्शंस होता है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ फैमिली ऐसे होते हैं जिसका मैक्सिमम पैसा जो है वो हेल्थ में ये चल जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। स्पेशली ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस मतलब जो गरीब रेखा में रहते हैं उनके साथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो उनका जो भी पैसा रहता है, जो भी कमाई रहता है, वो हेल्थ में वेस्ट मतलब चल जाता है, ट्रीटमेंट करने में खत्म हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको उस तरह का आदमी के लिए फ्री और अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो वो जो है गरीब नहीं होंगे, ठीक है। उसको भी रोका जा सकता है इस तरह से करके। तो ये मेरे तरफ से पॉइंटर्स था जो कि हमने सोच सोच के लिखा। अगर आप लोग को कुछ इस तरह से लगे तो आप लोग अपने से कुछ और पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो। Even you can take the help of the internet also, you can take the help of the other books also. Okay, इसके अलावा कुछ कुछ और पॉइंट्स आप ऐड करोगे, ठीक है। उसके अलावा और एक पॉइंटर्स है, दैट इज हंगर। हंगर का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो दोनों एक तरफ से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, प्रॉपर्टी और हंगर। जब प्रॉपर्टी होता है तभी बेसिकली लोग हंगर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि फूड का जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाने के कारण भी जो है इस तरह से हंगर का सिचुएशंस आता है, ठीक है। मान लीजिए कि इस साल हम लोग का एरिया में अच्छे से खेती नहीं होता है, चाहे कितना भी इकोनॉमिकली अच्छे क्यों ना हो,
हम लोग का अगर खेती अच्छे से नहीं हो तो फिर हंगर बढ़ेगा ही, ठीक है। तो अच्छे से अगर हम लोग एग्रीकल्चर का प्लानिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एग्रीकल्चर में। नॉर्मली क्या होता है कि अभी तो काफी टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके हेल्प से हम लोग को अगर जो रिक्वायरमेंट होता है क्रॉप्स में वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो नेचुरल चीज है उसको अभी तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करना मुश्किल है कि कब पानी हो जाएगा, कब बारिश हो जाएगा, कब बाढ़ आ जाएगा, कब ज्यादा मतलब एकदम पानी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग को एग्रीकल्चर करना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग में, प्रॉपर जब टाइमिंग होता है जो पर्टिकुलर क्रॉप्स कल्टीवेट करने का उस पर्टिकुलर टाइम में करना चाहिए, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉर्मली क्या होता है जिसके पास ज्यादा फूड है वो वेस्ट कर देते हैं और जिसके पास नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोग का फूड वेस्ट को रिड्यूस करना है, फूड वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? फूड वेस्ट करते हो आप लोग? नो सर। यस वेरी गुड, बाकी सब करते हैं लगता है। चलो, आयुषी, विद्या, ईसा, एनीवन एल्स? नो सर। करना भी नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। और फूड वेस्ट को रोकना है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को जो किसान हैं उनको खेती ज्यादा करना है, क्रॉप ज्यादा ग्रो करना है, ठीक है। उसके बाद हाइजीन और सैनिटेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद बाय कंट्रोलिंग क्रॉप इन्फेक्शंस, जो क्रॉप इन्फेक्शंस होता है इसका मतलब क्या होता है कि काफी बार ये देखा गया है कि किसान जो है वो खेती तो अच्छे से करते हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिजीज हो जाता है, जैसे आदमी का डिजीजेस होता है उसी तरह से क्रॉप्स में भी डिजीजेस होता है, उसी तरह से क्रॉप्स में भी इन्फेक्शंस होता है, ठीक है। जिसके कारण जितना भी अच्छे से उसको पानी मिले या उस तरह से रिक्वायरमेंट मिले, लेकिन अगर इस तरह से क्रॉप्स में हाइजीन या सैनिटेशन या इस तरह से इन्फेक्शंस हो जाए तो हम लोग का क्रॉप्स ग्रो नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। तो हाइजीन और सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्रोलिंग क्रॉप इन्फेक्शंस, क्रॉप का इन्फेक्शंस कंट्रोल करके हम लोग हंगर को रिड्यूस कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना है एग्रीकल्चर में। अभी भी काफी खेती करते हैं जो किसान है जो प्रॉपर मेथड जो है यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फूड वेस्टेज सिस्टम को इम्प्रूव करके कर सकते हैं, ठीक है, कि फूड वेस्टेज का जो सिस्टम है उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव करें उसके बारे में हमें सोचना है। तो ये सारे पॉइंटर्स है जिसके थ्रू हम लोग हंगर को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने ये जो दो स्पेसिफिकली एक्टिविटीज है वो देखा, जिसमें एक तो ये है कि अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोगो ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, another is what we can do in the situations as like hunger or poverty or as like war types of situations, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों एक्टिविटी को बनाओगे, इस बार का होमवर्क में बनाने का कोशिश करोगे। उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आंसर है जो असेसमेंट 3 में है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन आंसर जो है ए पार्ट डिस्कस कर लिया था, बी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अलावा उसमें भी एक एक्टिविटीज है रिलेटेड टू दैट आल्सो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? नो सर, नो डाउट। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। सर बाय सर। यस, बाय 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 सर, बाय सर, बाय। someone is saying something? युवराज और who? कुछ बोल रहे हो, बोलो। Okay then, thank you and bye bye.